ڈسکور اوریجنل کے پیارے دوستو، آپ سن رہے ہیں مسیحا اور میں ہوں اسد۔ اس سے قبل آپ مسیحا کی 113 اقساط سن چکے ہیں۔ اب قسط 114 ملاحظہ فرمائیں، لیکن حسب روایت آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک لازمن کریں، شیئر کریں، کمنٹس باکس میں اپنی محبتوں کا اظہار لازمن رکھیں۔ آئیے داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ اور اپنے دو ساتھیوں کی ناکامی کے بعد اس نے بیماری کا ڈرامہ کھیلتے ہوئے ہم تک پہنچنے کی کوشش کی ہو؟ یس سر، میں اب سمجھا، ڈاکٹر جیمز بولا، اور اس وقت تک کمبخت کلونتی میرے پیروں سے دونوں جوتے اتار چکی تھی۔ باہر ڈاکٹر اشوک کا وہی باڈی گارڈ بنگو موجود ہوگا۔ یہ وہی بنگو تھا جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہو رہا تھا۔ ادھر میری حالت ایسی ہو رہی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ڈاکٹر اشوک بے حد ہی خطرناک ثابت ہو رہا تھا۔ تیسرے ساتھی کے ذکر پر جہاں میری پریشانی میں اضافہ ہوا تھا، وہیں اس تشویش میں کمی بھی واقع ہوئی تھی کہ ہم تینوں ہی کا ذکر ہو رہا تھا، یعنی میرا، ریٹا اور ٹوجا کا، اور مبینہ طور پر مرد ساتھی ان کے کسی خودکار الیکٹرانک ٹریپ میں پھنس کر مر چکا تھا، جو ظاہر ہے ڈوجا کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ یوں مجھے تسلی تو ہوئی کہ یہاں طارق اور رومی کا کوئی رول نہیں تھا۔ ڈوجا کے مرنے کا میں تھوڑا بہت افسوس کر سکتا تھا، لہذا اب یہ دوسرا جو ساتھی یعنی خاتون قید کر لی گئی تھی وہ ریٹا ہی ہو سکتی تھی۔ اب میری باری تھی۔ میں یکدم محتاط ہو گیا، بلکہ محتاط کیا ہونا، بیڈ پر ہی بظاہر ان کے رحم و کرم پر پڑا ہوا تھا۔ کلونتی میرے جوتے اتار کر باہر بنگو کو دکھانے کے لیے لے جا چکی تھی اور میں تن بتقدیر ہو چکا تھا۔ اس سے شاید تھوڑی ہی دیر بیتی ہوگی کہ اچانک میں نے ایک آنکھ کی جھری سے دیکھا کہ دروازے پر ایک لمبا ترنگا ورزشی جسم کا مالک اور کالا بھجنگ سا شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر جوش طاری تھا اور حرکات و سکنات سے اجلت پیدا ہو رہی تھی۔ اس مردار نے اپنے ہاتھ میں میرے جوتوں کی جوڑی پکڑ رکھی تھی۔ اس کے ساتھ کلونتی بھی پریشان اور قدرے بوکھلائی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ ماسٹر، یہی وہ تیسرا شخص ہے جس کے پیروں کے نشانات میں نے دیکھے تھے، اسے میرے حوالے کر دو، میں بھی اس کا بھرکس نکال دیتا ہوں۔ شٹ اپ، اپنی اوقات میں رہو۔ ڈاکٹر اشوک نے اس ناہنجار کو بری طرح چھڑک دیا۔ خود مجھے بھی اس پر غصہ آنے لگا، لیکن فی الوقت میں ایک قسم کے خوف کا شکار تھا۔ یہ پہلے ہی بے ہوش پڑا ہوا ہے، ان دونوں کو اب ہم اپنا شکار بنائیں گے، ان کی سزا یہی بہت ہے۔ ڈاکٹر اشوک کو جب میں نے یہ کہتے سنا تو مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں لاتعداد چیونٹیاں سے رینگتی محسوس ہونے لگی۔ میرا خدشہ درست ثابت ہو رہا تھا۔ اسے پہلے والے قیدی عورت کے ساتھ روم نمبر 3 میں پہنچا تو میں تھوڑی دیر میں وہیں پہنچتا ہوں، ڈاکٹر اشوک جیمز اور کلونتی کو ہدایات دیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ان دونوں کو آج ہی کھوکھلا کر ڈالتے ہیں۔ 3 گاہک لسٹ پر موجود ہیں اور روانگی بھی تیار ہے۔ کہتے ہوئے جب وہ دروازے کی جانب مڑنے لگا تو جانے کیا سوچ کر وہ کمبخت دوبارہ پلٹا۔ میں اپنی بند آنکھوں کی جھری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بغور میری جانب دیکھتا ہوا میرے بیڈ کے قریب آتے ہوئے کہنے لگا، میں پہلے اسے چیک کر لوں، پتہ نہیں کیوں میرا من کہہ رہا ہے کہ یہ اب پھر ڈرامہ کر رہا ہے۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ مجھے اپنے پورے وجود میں سنسناتی ہوئی لہریں توڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ کمرے میں اس کالے پہلوان بنگو سمیت سبھی موجود تھے۔ اگر ڈاکٹر اشوک کو ذرا بھی بھنک پڑ جاتی کہ میں واقعی بے ہوشی کا ڈرامہ کر رہا ہوں تو یہ بآسانی مجھے اکیلے پر قابو پا کر اس بار سچ مچ بے ہوش کر سکتے تھے۔ تب پھر شاید میری آنکھیں اس آپریشن ٹیبل پر ہی کھلتیں جہاں میرے جسم کو کھوکھلا کرنے کے لیے لٹایا جا چکا ہوگا۔ یہ تصور کرتے ہی میں سرتاپا لرز گیا۔ ڈاکٹر اشوک میرے قریب آ کر جھکنے لگا اور میں نے شدید خوف سے آنکھیں پوری بھینچ لیں۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر؟ نریش سے موہن کی ہدایت کے مطابق بے ہوشی کا انجیکشن لگا چکا ہوگا۔ مجھے اپنے کانوں میں کلونتی کی آواز سنائی تھی، جو دشمن اور ساتھ ہی بدصورت ہوتے ہوئے بھی مجھے کم از کم اس وقت دنیا کی خوبصورت ترین خاتون محسوس ہوئی۔ یہ ہوش میں ہے۔ اگلے لمحے ڈاکٹر تقریباً چلایا، میری سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ میں نے ایک دم اپنی آنکھیں کھول تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب ڈاکٹر اشوک اپنے بھونڈے سے چہرے سمیت مجھ پر اچھا خاصا جھکایا تھا۔ مجھے اور تو کچھ نہیں سوچا۔ آنکھیں کھولتے ہی میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچ لی، اور یہی نہیں بلکہ اسے زور سے خود پر سے پرے دھکیل دیا۔ وہ لوگ اس اچانک گفتاد کے لیے شاید ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، بلکہ کلونتی اور ڈاکٹر جیمز تو چند ثانیے کے لیے ہکا بکا سے رہ گئے تھے، جبکہ میرا دھکا لگنے سے ڈاکٹر اشوک لڑکھڑاتا ہوا پاس ہی عقب میں کھڑے بنگو سے جا ٹکرایا۔ لیکن بدبخت بنگو نے ڈاکٹر اشوک کو کسی کھلونے کی طرح اپنے لمبے چوڑے بازوؤں کے حصار میں لے کر سنبھال لیا۔ ادھر میں بیڈ سے اچھلا اور فرش پر آ رہا۔ بنگو اپنے حلق سے خوفناک راہٹیں بلند کر رہا تھا۔
मुझे सबसे ज्यादा उसी से खतरा था, क्योंकि वो दरवाजे के पास ही खड़ा था, जिसके दरगाह में आने से बचने के लिए मैंने फर्श से दरवाजे की जानिब छलांग लगाई तो बिंगू ने बड़े आराम से मुझे कैच कर लिया। मैंने उस देवजात के शिकंजे में फंसते ही यूं तड़पना शुरू कर दिया जैसे मुझे 440 वोल्ट का करंट लग गया हो, जिसने एक लम्हे के लिए तो बिंगू को भी हैरान सा कर दिया था। यही एक मौका मिला था। मैंने उसकी ठोड़ी पर अपने दाएं हाथ का एक जोरदार मुक्का रसीद कर दिया। उसे यकीनन यूं लगा होगा जैसे किसी चूंटी ने उसे काटा हो। उसने मुझे फर्श पर पटक दिया। मेरे हल्क से जिगर पास चीख निकल गई। अगरचे इस चीख में तकलीफ का उनसर कम और मदद लेने की गर्ज से ज्यादा शामिल थी, मगर महसूस फिर भी मुझे यूं हुआ जैसे मेरे जिस्म की हड्डियां चटक गई हों। मुंह क्या तक रहे हो तुम दोनों, इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाओ, डॉक्टर अशोक ने जेम्स और कलवंती से कहा। मैं फर्श पर पड़ा अभी हाय हाय ही कर रहा था कि बिंगू ने मुझे फिर दबोच लिया। कलवंती और जेम्स डॉक्टर अशोक के हुक्म पर चाबी भरे खिलौनों की तरह हरकत में आए और मुझे बेहोश करने वाला इंजेक्शन भरने लगे। बिंगू ने मुझे दबोच लिया था। एक हाथ उस मुर्दार ने मेरे मुंह पर भी रख लिया था। मैं चीख चिल्ला तो कजा, आवाज भी अपने हल्क से निकालने का रवादार नहीं रहा। सांस की आवक जावक भी मुश्किल महसूस होने लगी। मैं जानता था कि अगर यह इंजेक्शन लगा दिया गया तो कोई वायद नहीं, मुझे होश अब या तो ऑपरेशन टेबल पर आएगा या फिर आंख मेरी आलमे बाला में खुलेगी। बेबसी और खौफ के इंतहाई एहसास तले मुझ पर जैसे सख्ता सतारी हो गया। वजूद की ताकत दम तोड़ने लगी। चौंका तब जब डॉक्टर जेम्स मेरी नस में सुई खोंप चुका था और इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। जिंदगी और मौत के दरमियान फासला ही कितने पल का होता है। आती जाती सांसों का भला क्या एतबार। ऐसे में कोई किसी को हलाक करने का तहैया भी कर ले तो मौत से पहले मौत का यकीन होने लगता है। ये खौफनाक लम्हा होता है। नींद या बेहोशी को भी आधी मौत कहा जाता है। इस आधी मौत से मैं कब बेदार हुआ था मुझे नहीं मालूम। अलबत्ता जब मेरी आंख खुली तो पहला एहसास मेरे नतनों के जरिए घुसने वाली मखसूस अदवायात और दीगर महलूल की भूख का था। फिर रफ्ता रफ्ता मेरे दीगर हवा से खमसा बेदार होने लगे तो दिमाग की यादाश्त का खाना भरने लगा। मुझे सब याद आता चला गया कि मेरे साथ हुआ क्या था और अब क्या होने वाला था। हस्ब तवक्का मैंने खुद को ऑपरेशन टेबल पर कुछ इस तरह पड़े पाया कि मेरे दोनों हाथ चमड़े के बेल्ट से बने हुए थे। पैरों की भी यही सूरत हाल थी। एक बेल्ट मेरे पेट से भी किसी सांप की तरह लिपटी हुई थी। अलबत्ता ऑपरेशन टेबल पर लेटे लेटे मैं अपनी गर्दन को जरूर दाएं बाएं हरकत दे पा रहा था। माहौल ऑपरेशन थिएटर ही का था और मंजर तो मुझे खौफनाक ही लग रहा था, अगरचे वहां कोई भी नहीं था। लेकिन नहीं, गर्दन दाएं जानिब मोड़ने पर मैं बुरी तरह चौंक उठा। मेरे दाएं जानिब एक और ऑपरेशन टेबल लगी हुई थी। इस पर मैंने रीटा को भी बिल्कुल अपनी तरह लेटे पाया। इससे शायद मुझसे पहले ही होश आ गया था और वो लेटे लेटे अपनी गर्दन घुमाए मेरी जानिब ही देख रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर भी बेबसी और खौफ का तासुर था, मगर बका की जंग के जोश की एक तमाजत भी उसकी आंखों और चेहरे से हवीदा थी। शुक्र है तुम्हें होश तो आया। आवाजें दे देकर तो मेरा तो हल्क भी खुश्क हो गया था। वो मुझसे मुखातिब हुई। होश में आने के बाद मुझे कौन सा तीर मार लेना था, इसकी बात पर मैं जल कर बोला। बेबसी और मायूसी ने मुझे छल्ला कर रख दिया था। मुतवक्का खदशात और यकीनी वसवसों ने मेरे दिलो दिमाग को भी खौफ से जकड़ लिया था। एक से दो भले होते हैं। कुछ सोचो, हमें क्या करना चाहिए? ये लोग हमारी बलि चढ़ाने लगे हैं। क्या तुम ऐसी इबरतनाक मौत से हम किनार होना चाहते हो? वो बोली। उसकी बात ने मुझे जोश दिला दिया था। वो नान मुस्लिम थी और मैं मुसलमान, खान नाम ही का सही, मगर बहरहाल मेरे लिए मायूसी गुनाह थी। मैंने चंद गहरी गहरी सांसें ली, कमरे का जायजा लिया। ऑपरेशन थिएटर ही था। यहाँ मेरे और रीटा के सिवा और कोई नहीं था। मगर ये मरदूद हैं कहाँ? मैंने कहा तो रीटा दांत पीस कर बोली, भोंगे सवालात छोड़ो, जाहिर है वो हमारी काट पेट करने की तैयारी में लगे होंगे। मुझे तो लगता है ये मूर्ख डॉक्टर अशोक और इसके खूनी साथी हमें इंतकामन बेहोश करने के बजाय जिंदा हालत ही में हमारे आजाद निकालेंगे। तसव्वुर करो इस घड़ी का जब हम खुद अपनी आंखों से अपना पेट और सीना चीरते हुए देख रहे होंगे। जरा इन जांगुसल लम्हात का अभी से तसव्वुर करके देखो। शट अप, मैं जोर से चीख कर बोला। इसकी कैंची की तरह चलती हुई जुबान को यकलख्त ब्रेक लगे थे। चुप हो जाओ, वक्त से पहले खुद ही अपनी और मेरी जान निकाल रही हो। मैं झुझुरी लेकर बोला। वो चुप हो गई। कुछ करना चाहिए हमें। मैं अपने हाथों पैरों को झटके देकर बेल्ट खोलने की कोशिश कर रही हूं और तुम भी यही करो। यह बात तुम्हारी माकूल है। मैंने उसकी तौसीफ करना जरूरी समझा और हम दोनों उसी कोशिश में लग गए। मैंने ऑपरेशन टेबल पर पानी से निकली किसी मछली की तरह जोर जोर से तड़पना शुरू कर दिया। नतीजे में पूरी ऑपरेशन टेबल ही नहीं
बल्कि पूरा कमरा हिलना शुरू होने लगा, गोया जलजला आ गया हो। रीटा जो खुद भी इन जकड़बंदों से आजाद होने के लिए हिलजुल कर कोशिश कर रही थी, इस उस्ताद पर घबरा गई और अपनी कोशिश भूलकर मुझसे चिल्लाकर बोली, अरे अरे क्या हो गया तुम्हें? खैरियत तो है ना? तुम ठीक तो हो ना? मैं उसकी आवाज सुनकर रुक गया, गोया पूरा लरजता माहौल थम गया था। खुद ही तुम कह रही थी कि जकड़बंदों को खोलने की कोशिश करो, हाँ मगर इस तरह नहीं जैसे तुम कर रहे हो। वो बोली, इस तरह तो मुझे डर है कि तुम ऑपरेशन टेबल समेत ही नीचे ना गिर पड़ो। इसी वक्त धड़ से दरवाजा खुला, हम दोनों चौंक पड़े। क्या देखते हैं कि दरवाजे से 4 अफराद ओटी ड्रेस में दाखिल हो रहे थे। मैं इन्हें मास्क में भी पहचान सकता था। ये मौत के हरकारे थे, इंसानी आज़ा की गैर कानूनी पैबंदकारी करने वाले खूनी सौदागर थे। यानी डॉक्टर अशोक, इसका असिस्टेंट डॉक्टर जेम्स, नर्स कलवंती और सर्जिकल टेक्नीशियन मोहन था। इन चारों नामुरादों ने सर्जिकल ड्रेस पहन रखे थे, चेहरों पर मास्क थे। कलवंती और मोहन जल्दी से करीब धरी एक स्टील की मेज खींचकर सबसे पहले मेरी टेबल पर ले आए। मैंने देखा कि इस पर तरह तरह के स्टेनलेस स्टील के सर्जिकल आलात लश्कारे मार रहे थे। वह सबसे पहले मुझे तख्ता मश्क बनाया जाने वाला था। मेरा दिल उछलकर हल्के में आ अटका। तुम लोग मेरे साथ ये नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी बोटियां नोच लूंगा। तुम्हारे साथियों का भी मैंने बुरा हशर किया था। अमरनाथ को भूल गए? मैंने ही उसे तस्वीर इबरत बनाया था, अगरचे इसमें मेरे जज्बे से ज्यादा अनाड़ीपन का दखल था। लेकिन मैं पागलों की तरह चीखने और इन्हें धमकाने लगा। आज़ाद रखने के लिए महलूल भरे जार सामने रखो। डॉक्टर अशोक ने मेरे चीखने और धमकियां देने की परवाह किए बगैर अपने माहतहतों से कहा। वो बड़े निमाग से अपना काम करने में मसरूफ रहना चाहते थे। कुत्ते की औलाद, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे नहीं जानते। मैं पाकिस्तान से यहां तुम सब की खटिया खड़ी करने आया हूं और एक दिन जरूर अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। मुझ पर शायद खौफ और दहशत ने दीवानगी तारी कर दी थी। मैं शायद पागल होने के करीब था, मगर ये बदबख्त लोग मेरी धमकियों को यूं मुस्कुरा कर देखने लगे जैसे मैं इन्हें लतीफे सुना रहा हूं। तब पहली बार डॉक्टर अशोक मुझसे मुखातिब होकर सर्द और सफाक लहजे में बोला, इसलिए तो हम तुम्हें जिंदा हालत में खाली करना चाहते हैं। जेबें तो खाली होना तुमने देखी ही होगी, अब जरा अपने शरीर को भी अहम आज़ाद से खाली होता देखना। मगर चिंता मत करो, मेरा वादा है कि मैं इस सफाई और महारत से काम करूंगा कि तुम अपने शरीर से गुर्दा, फेफड़ा और जिगर भी निकल कर अलहदा होते देखोगे। सबसे आखिर में दिल निकालूंगा तो इसके बाद तुम्हारी आंखें बंद होने लगेंगी। जरा तसव्वुर करो डॉक्टर साहब, कैसा मंजर होगा वो। मैं उसकी बात पर लर्ज गया, चौंका भी कि वो मेरे नाम से भी वाकिफ हो चुका था। ये कोई बड़ी बात तो थी नहीं, ताहम फिर भी इनकी तेजी और फुर्ती पर मुझे हैरत हुई थी, जिसका साफ मतलब था कि ये लोग पल पल की खबरें और हालात से अपनी आला क़यादत को इन्फार्म कर दिया करते थे। देखो मत करो मेरे साथ ऐसा। तुम लोगों ने मेरे मासूम भाई आदिल के साथ भी यही कुछ किया था। मैं उनकी मिन्नत समाजत पर उतरा, मगर इन मरदूदों ने मेरी एक बात पर भी जरा तवज्जो नहीं थी। अरे नहीं, अचानक वो रुक कर बोला, अंदाज सोचने और मेरी बेबसी और खौफजदगी से हज उठाने जैसा था। क्यों ना ये जरा दिलचस्प मंजर तुम्हें और भी ज्यादा धूमधाम से दिखाया जाए? हाँ यही ठीक रहेगा। इसकी बात पर एक नई तजवीज सदा सी उलझन का मैं शिकार हो गया। डॉक्टर अशोक ने करीब धरी ऑपरेशन टेबल की तरफ इशारा किया, जिस पर रीटा मेरी तरह रसन बस्ता हालत में लेटी हुई थी। सबसे पहले इसे खाली करते हैं और ये मंजर हम अपने प्यारे दुश्मन सैफ को दिखाएंगे। अपनी खूबसूरत साथी का हशर देखकर इसे भी मजा आएगा और हमें भी। मैंने लेटे लेटे गर्दन घुमाकर बाजू वाली टेबल पर रीटा को देखा। वो भी इसी तरह गर्दन मोड़े मेरी जानिब देख रही थी। इसका चेहरा पहले सुर्ख था, फिर नीला पड़ा और अब डॉक्टर अशोक की बात पर पीला पड़ने लगा। चलो भाई शुरू हो जाओ साथियों, अशोक ने ऐलान किया, यूं जैसे दावत उड़ाने वाले हों। वो सब घूमकर रीटा की टेबल के गिर्द जा खड़े हुए, इस तरह के इसके पेट और सीने का एक हिस्सा मुझे नजर आता रहे। मैंने एक छुरछुरी से लेकर लेटे लेटे अपनी गर्दन दूसरी जानिब घुमा ली। मुझे रीटा के खौफ से दबे दबे लहजे की दादो फरियाद सुनाई देने लगी। हे, इसकी गर्दन इस तरफ मोड़ के रखो ना। जाओ जेम्स। अशोक ने शायद मेरा चेहरा दूसरी तरफ होते देख लिया था। जेम्स मेरी तरफ आया और इस कमबख्त ने बैंडेज की पट्टियों ही से मेरा मुंह रीटा की टेबल की जानिब घुमाकर मजबूती से इस तरह बांध दिया कि अब मैं उसे देखने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। अलबत्ता अपनी आंखें बंद करने का ऑप्शन मेरे पास सनूज था। इन जालिमों ने पूरे इनिभाग के साथ काम शुरू कर दिया। कमरा यकीनन साउंड प्रूफ था, एसी चल रहा था। न चाहते हुए भी मुझे यह लर्जा खेज मंजर देखना पड़ा।
डॉक्टर अशोक रीटा पर झुका। उसके पेट पर तेज निश्तर चला रहा था। खून तेजी से निकलने लगा। कलवंती डॉक्टर अशोक को मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट थमाए जा रही थी। डॉक्टर जेम्स डॉक्टर अशोक को असिस्ट कर रहा था। रीटा के हल्क से खरखराती और फिर दिलदोज चीखें निकलने लगी तो अशोक ही के इशारे पर जेम्स ने उसके मुंह पर मोटा गाज पीस ठोंस दिया। रीटा ने बमुश्किल अपना सर उठाकर सीने और पेट की जानिब देखा और उसकी आंखें पहलकी। डॉक्टर अशोक बड़ी सफाई से उसकी सुर्ख सुर्ख तिली निकाल रहा था। कलवंती जल्दी से शीशे का एक महलूल भरा जार उठा लाई थी। अशोक सफेद दस्तानों में हल्की स्याही माइल और गाढ़ी सुर्ख तिली इसके अंदर डाल रहा था। रीटा ने मेरी जानिब गर्दन मोड़ी। मैंने उसके चेहरे को देखा। उफ, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बेबसी, ऐसी बेचारगी, ऐसी लाचारगी, ऐसी मदद और रहम तलब निगाहें और तासुरात नहीं देखे थे। जिस तक यकीनी और जान गुसल मौत की जर्दी लिए रीटा के हसीन चेहरे से झलक रहे थे। एकदम अपनी आंखें बंद कर ली। सर, इसने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। मैंने बंद आंखों और सुनती समातों में रजील जेम्स की आवाज सुनी। मोहन, इसकी आंखें खोलो। मुझे डॉक्टर अशोक की भेड़िए जैसे गुर्राहट सुनाई थी। मोहन मेरी जाने बड़ा था क्योंकि चंद लम्हों बाद उसने सबसे पहले तो मेरे मुंह पर एक थप्पड़ रसीद किया, जिसे घबरा कर मैंने आंखें खोल दी। आंखें खुली रखो, अगर दोबारा बंद की तो पपोटों पर टेप लगाकर खुली छोड़ दूंगा, जिससे तुम्हारी आंखों में जलन भी होगी और पानी भी बहता रहेगा, समझे? मोहन ने घुर्रा कर मुझसे कहा और दोबारा लौट गया। मेरे पास अब इसके सिवा क्या चारा था कि मैं न चाहते हुए रीटा की यह जुल्म जफा की हालत को देखते रहने पर मजबूर हो गया था। रीटा ने फिर से सकते हुए अपना सर थोड़ा उठाकर अपने खुले हुए सीने और खुले हुए पेट को देखा और फिर नीचे सर कर लिया। ये इंसानियत सूझ खूनी खेल इस वक्त तक जारी रहा जब तक रीटा का सर वाकई एक जानिब को नहीं ढलक गया। जरा फ्रेश होकर आते हैं और इसके बाद तुम्हारी बारी होगी। एक थकी थकी सी ओमकारी खारिज करते हुए सिफ्ते इब्लिस डॉक्टर अशोक ने मुझसे कहा और उसके जरा देर बाद वो चारों खूनी लोग ऑपरेशन रूम से निकल गए। रीटा का हसीन जिस्म अब कटे फूटे अंदाज में गोया ऑपरेशन टेबल पर फैला पड़ा था। मेरा दम घुटने लगा। मुझे एक लम्हे को तो इंसानियत ही से नफरत होने लगी, लेकिन नहीं, सब एक जैसे भला कब होते हैं? नेक और बद ही की तो ये दुनिया है। मैं खुद को हौसला देने लगा। मुझे जल्द अज जल्द इस मोहलत से फायदा उठाना था। रीटा के अल्फाज मुझे याद आ रहे थे, पर मुझे बार बार यही तलकीन कर रही थी कि कोई कोशिश करो खुद को छुड़ाने की। मैंने इस बार माहिबे आपकी तरह तड़पने की फजूल कोशिश के बजाय एक लंबी सांस खींचकर चंद सेकंड गौर किया। मेरे हाथ कलाइयों की तरफ से चमड़ी के बेल्ट के जरिए बंधे हुए थे और यही हाल टांगों का था। मैंने सबसे पहले सिर्फ अपने दाएं बाजू पर जोर दिया। जानता था कि एक हाथ के आजाद होने पर आगे भी बहुत कुछ किया जा सकता था, इसीलिए मैंने अपनी सारी तवज्जो उस जोर आजमाई पर मरकूज कर दी। ये धड़का अपनी जगह था कि ये खूनी लोगों का जत्था न जाने कब दोबारा आन दमके। अंदाजा तो यही था कि आध एक घंटा तो इन मुर्दारों को लौटने में जरूर लगेगा।